Now I will tell you that class 10 CBSE and 9 CBSE students or 9 ICSE students maybe learn these things. That suppose two equations are given. A general form of equation is ax plus by plus c equals to 0. So it will become a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And another will become a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Suppose two equations are given to you. What you basically learn is that if this is equation number 1 and if this is equation number 2, then you generally learn that if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 is not equals to c1 by c2, we say no solution. Then you learn that if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, means a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then infinitely many solutions. And you learn that a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then we say unique solution. These things you generally learn in class 10 CBSE. Teacher teaches you point number 1, point number 2, point number 3 done. And they tell you maximum to maximum you are supposed to learn that unique solution means one solution also. Unique solution does mean one solution also. Means when we cancel and get one solution, that means the condition is that. What is the conditions for solvability? The heading is there, no conditions for solvability. The condition is that if a1 by a2 is not equals to b1 by b2 of the two equations. When we compare the two equations, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then we get unique solution. Means इन दोनों इक्वेशन को लेके कैंसिल आउट करने से या एलिमिनेशन करने से तुमको एक आंसर मिलेगा. इसका मतलब क्या होगा? अगर दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओगे तो इसका मतलब यह समझ में आएगा कि अगर ये इक्वेशन ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब दो लाइंस एक इक्वेशन दे रहा है, इसका मतलब वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एंड दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन. इसका मतलब तो यही होना चाहिए ना. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू आर टॉट दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. They are intersecting lines. मतलब a1 by a2 not equals to b1 by b2 अगर हुआ, a1 by a2 not equals to b1 by b2 अगर हुआ, they are intersecting lines. Yes or no? Means they will intersect at one point, you will get the answer and the coordinates of that point is actually the solution of these two equations if you solve them. Normally what you do? Yes or no? Understood? This much understood? Hana bol do? Yes, sir. Yes or no? Understood this much? Oh. Now again, if I say you a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, infinitely many solution is infinitely many solution कैसे आ सकता है सर? आ सकता है अगर लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने क्या सीखा था कि एक लाइन अगर होगा उस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है. जैसे कि इस केस में इस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है. खाली ये वाला पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उस पॉइंट में वो पॉइंट दोनों लाइंस पे है, बोथ द लाइंस पे है, तो वो सॉल्यूशन बना. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब हो सकता है जब ये वाला लाइन ये लाइन है और ये वाला लाइन भी यही लाइन है. मतलब और एक लाइन ड्रॉ किया है लेकिन वो लाइन तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर से गया है. सच लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं.
क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, दिख नहीं रहा है, एक के नीचे दूसरा दब गया है, यानी कि हर एक का पॉइंट कॉमन है। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होगा एक लाइन में, और हर एक पॉइंट इसको भी सॉल्व कर रहा है, इसको भी सॉल्व कर रहा है, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, अगर कोई तुमको बोल दे, सोचा था ये पार्ट यूज नहीं करूंगा, यूज हो ही गया, आ रहा है ना भाई वीडियो में? सो इसमें क्या होगा? अगर ये वाला कंडीशन हो गया मेरे भाई कि a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, मतलब क्या? ये वाला का लाइन ये हुआ और दूसरे वाला का लाइन ये हुआ, पैरेलल। क्या लाइंस? तो कभी मीट करेगा, कभी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो इंटरसेक्ट करने से आता है। सॉल्यूशन तो वो पॉइंट है जो दोनों लाइन को जिसका x और y का वैल्यू कोऑर्डिनेट दोनों को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे कोई भी होगा तो क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका क्या है? पैरेलल लाइंस। आया समझ? आया समझ? ये कंडीशन तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया? मेरा एक्चुअली इंटेंशन क्या था आज वीडियो बनाने का? 2 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरा बन रहा है, पार्ट 3। 2 वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि मैं तुम लोगों को ये सिखाऊं जो तुम्हारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ताकि थोड़ा तुम लोगों का पढ़ाई में भी एंटरटेनमेंट हो जाए कि ये कंडीशंस आया कहां से। मतलब पैरेलल लाइन होने से ये कंडीशन होता है, सीधा बात। कोइंसिडेंट लाइन होने से ये वाला कंडीशन होता है, सीधा बात। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस होने से ये वाला कंडीशन होता है, राइट? आया कहां से ये कंडीशन? ये मेरे को सिखाना है। तो आई होप इस वीडियो में ये क्लियर हो गया। ये उन बच्चों के लिए जो खाली ये प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसके लिए एनफ है। यस और नो? नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में मैं प्रूफ करता हूं कि ये कहां से आया। जिसको इंटरेस्ट लगेगा वो पार्ट 4 में जाके देखेगा, तुम लोग लकी हो यहाँ पे जब बैठ के देख लेंगे। चलो वीडियो बंद करो।